Jixtene yul changme nanga gyunor paljori yongo phel chukje se nanga skoryang se ma khak chenmo tang rox gyala yoano ngati ladakh spong chilo Jixtung gugya dunchu dobji loa skoryang spa gunifia peste inpin yang tenna loa skoryang spa skot khan Gunitangska ngapkya ishul sabdun inpin tenang ne ngapkya bu chirgel ne yang ishul sabdun bu gyagare yulkhak soso ne inpin yang tenna ne parla skoryang spa skot khan gunitangska lo palo rgyaste inpin kazuk ngatang changma Tukyus ino le gyalsa bo the gyazo chenmu ni halam fit tong chukshi ge thonpe ka naste yote ino Ladakh Yuljongs Karus Kyotnang Nature Yangna Rangji ne Thongan bo ma zespo yote ino Tontak bo Ladakh se Rangjin bo ma phulsum sokspa jik Kabe na Ribo Thonpo Stangspo Spang Naktsal Ri Simshan Natsos Basis Yangna La Thonpe Smansa Natsos Shiktang Kangsri Taskorte Yote Inok Igun Manpa Ladakh se Yulkhak Sangme Nawa Nasa Sachan Khargumpa Tang Termin Mangpojik Jukste Yote Inu Yang Skoryang Spagun Rangrang E Dotpa Nangjin Su Khargumpa Dos Nangchan Su Yulkhola Thatkan Su Kangdul Zada Thatkan Tang Su ni Adventure Yangna Nyenkha Chan Skoryangs La Thatkan Zera Tsoksla Natsokshik Shkyodin Inok Dumra Kawa Tentus Nubrang Shot Dumra ni Le Gyalsa ni Halam Kilometer Gyanang Mapchu Tharinga Changchongsla Naste Yote Ino Yang Le Bala Khardongla Galgos Juano Khardongla ni Jixteni Nawa Motor Khorle Gyalam Thoshoks Nisbabo Thiano Yang Maminjan in Pasang Skoryang Spa Khachigni Innabo Tala Mixal Chuste Skyodano यहाँ का स्नोफॉल तो बहुत ही एंजॉय किया हमने बस बढ़िया बढ़िया था यहाँ पे सब यहीं पे गए थे खरदुल्ला पास बढ़िया था वहाँ पे हाँ स्नोफॉल तो मजा आया मतलब कभी आगे करेंगे पता नहीं
के लिए यहाँ आए हैं और बहुत प्लेजेंट है सब, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते इतना एंजॉय कर रहे हैं, मतलब रियली इट्स लाइक ए हेवन फॉर अस। हमने खरदुल्ला पास से होके आए, उससे पहले कल पेंगोंग लेक गए थे और लकीली ऐसा बोलते हैं जून में यहाँ पे कभी स्नोफॉल नहीं आता है, लेकिन हम उस हिसाब से बहुत लकी रहे कि दोनों जगह पे हमने स्नोफॉल एंजॉय किए। वो तो मतलब इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। Sefia nasa khachige skor lajuna te gunni diskit hundar panamik tang turtuk gun ino diskit ni dumre yangna nubre gyalsabu ino diskit na diskit gonpa yangna galdan tashi chosling gonpa juste changmisang ningpa tang Cheshop gonpa jukste yote ino. I gonpa ni gyatak chubji pe nanga, zongka pe lotma, changsim sherab zangpe, chak taba zatgyak, yang I gonpa ni tikse gonpe yanlakshik inok. I gonpe nanga, cho rinpoche skunyan jukste yote ino. Gonpe nanga laris ni pode dashi lumbi gonpe lukse kha dia jate ino. I gonpe lokhori duschod ni diskit dosmuche juin tia zadano. Attes kapsu ngada yulpa mimang tsangma ngada ina stachan gompe na dukang tuk jalas kyo dano yale nena zo ngata gusto na ngata chosyong shuma yongzo cham karsan piyano ngata ina cham jalas pebzano tes kapsu ngata gusto na jama ni dun hunla ngata chosyong yongzo jalke pyajar no yale sakna kasale
sand dunes. Yang na pemeji ni hundare na yote ino. Kawo skoryang spa gunefia nasa minchanjik gyurte yote ino. Yang inaru double hump yang na zia nispa chani ngabongang thongyu yote ino. Yang hundari mi gune ikane yongong spelano. For the first time when I found mountains, greenery, sand dunes as well as a stream of river running together at one place itself. So it's very beautiful, and Ladakh itself is a place of mountains where you find different ranges right from Leh to Nubra. So both places are equally good. And whatever preconceived notions you have about acclimatizing in low oxygen, please don't be afraid of anything. I have seen kids coming over here and acclimatizing really well. We did really well. If you follow every guideline and everything, you will be good to go. You just need to give yourself 48 hours after coming here. That's all. And Nubra is beautiful. Leh in all is Ladakh is beautiful. Ladakhi people are so humble and down to earth, soft spoken. Really appreciate. They are just very humble. They have no sense of greed or ego. They are just down to earth people. Yes. एक्सप्लोर करने आया था लेह और लद्दाख और नुब्रा पैंगोंग वैली को। बहुत खूबसूरत वैली है और यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से ऐसा लगता था कि बहुत लोनली सा प्लेस होगा। रास्ते इतने खूबसूरत हैं कि रास्ते ही अपने आप में एक मंजिल सी लगती है। बट मेन चीज़ ये है कि थोड़ा सा भीड़ इस इलाके के हिसाब से मुझे ज़्यादा लगी, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेह में ज़्यादा पता नहीं चला भीड़ का, लेकिन यहाँ नुब्रा में क्योंकि एक ही पॉइंट है जहाँ पर सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि टूरिस्ट कहीं बाहर नहीं जा पा रहा कहीं पे भी, इसलिए डेफिनेटली इस एरिया पर प्रेशर पड़ना था। हमें डोमेस्टिक टूरिज्म, जैसे कि मोदी साहब भी कह ही रहे हैं कि भी डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देना है, तो शायद लोगों के दिमाग में है कि हमें डोमेस्टिक टूरिज्म को एक्सप्लोर करना चाहिए इन दोनों में, जब हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो लेकिन लेह अपने आप में एक बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। मैं ज़रूर दोबारा आना चाहूँगा आने वाले समय में। अभी बस मेरा पैंगोंग लेक रहता है, हम कल जाएंगे पैंगोंग लेक। 3 दिन से हम यहाँ पर हैं, 2 दिन में लेह में था, 1 दिन अभी नुब्रा में हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बट थोड़ा सा ऑक्सीजन को लेके मुझे इशू लगा, क्योंकि मुझे शायद थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस रही, बट फिर भी उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए नेचुरल ब्यूटी का जिनको शौक है वो ज़रूर, मैं कहूँगा कि लेह में एक बार उनको ज़रूर एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए लाइफ में, और मैं डेफिनेटली दोबारा आना चाहूँगा। ये मेरा पहली बार है कि मैं नुब्रा वैली में आया हूँ। मेरा एक्सपीरियंस, मैं नुब्रा वैली के लिए ही आया हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैं पहले लेह में पैंगोंग लेह सब करके जा चुका हूँ 2007 में। तो मेरा पर्पस नुब्रा को देखने का ही था, बिकॉज नुब्रा मैंने नहीं देखा हुआ था, और अब मैं नुब्रा आया हूँ और मेरा एक्सपीरियंस अगेन बहुत अमेजिंग है, क्योंकि नुब्रा भी वैसे ही एक स्पेशल जगह है। जैसे पूरे वर्ल्ड में जब आप घूमते हैं तो बोला जाता है कि इट इज़ जस्ट नॉट द डेस्टिनेशन विच मैटर्स, इट इज़ द जर्नी विच मैटर्स, एंड लेह लद्दाख, बेसिकली लद्दाख इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। जब आप नुब्रा आते हैं तो जो रूट है वो बहुत अमेजिंग है। यहाँ आप आते हैं, यू हैव सैंड ड्यून्स, यू हैव डबल हम्प कैमल्स, यहाँ आप ATV राइड्स कर सकते हैं, यहाँ पे रिवर स्ट्रीम है। ये 70 mm व्यू मैं बोलूँगा इसको, कि इतना बड़ा व्यू शायद नेकेड आई से आपको कभी देखने को नहीं मिलता कहीं और, जो आपको लद्दाख में देखने को मिलता है। इतना ह्यूज व्यू जिसमें आपका आई
का मतलब डिस्टेंस फिनिश हो जाता है, बट आपका व्यू रहता है। नॉर्मली पोल्यूशन की वजह से आपको कहीं भी इतना लंबा व्यू नहीं देखने को मिलता है जो लद्दाख में मिलता है। सो दिस इज अमेजिंग एक्सपीरियंस। सब देखने के लिए माउंटेन्स और ये वैली वगैरह हमने देखी तो ऐसी लगा कि यही पे जन्नत है, लिटरली हेवन ऑन द वर्ल्ड अगर कहा जाए तो लेह लद्दाख। और यहाँ पे आके जो दिल को सुकून शांति जो हमें बॉम्बे में नहीं मिलती वो यहाँ पे आके इतने अच्छे से मिले। एंड वी बॉयज आर सो रिलैक्स्ड, हमारा ग्रुप भी बहुत खुश है, वी आर वेरी मच एंजॉयिंग हियर। हम लोग को शुरुआत में बताया गया था कि यहाँ पे ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है, तो हम लोग वैसे भी थोड़े डर गए थे। तो यहाँ पे आने के बाद ऐसा कुछ लगा नहीं हम लोग को, और ऑक्सीजन का थोड़ा भी हम लोग को तकलीफ नहीं हुआ। हम लोग मतलब थोड़े डरे हुए थे, फिर भी ऐसा कुछ लगा नहीं, और बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। आज हमारा तीसरा दिन है और बहुत अच्छा लग रहा है, और क्लाइमेट भी सुपर्ब है, और यहाँ पे आके भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ के जो लोग हैं उनका नेचर काफ़ी अच्छा है, मन मिला हुआ है, बहुत ही अच्छा लगा उनको मिलके, फ्रेंडली लोग हैं। हम दुनिया के सब कोने में घूमे हैं, लेकिन इंडिया इज द बेस्ट। लेह लद्दाख जो भी यहाँ जो आएगा एक बार वो बार बार यहाँ आना चाहेगा। और यहाँ का जो व्यू, माउंटेन और राफ्टिंग वगैरह सब है तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ के जो लोग मनपसंद है, सब टूरिज्म पर जो प्रेम करते हैं, सबको मिल बैठ के सब गाना बिना ये सब बहुत ही अच्छा। इंजॉय।